morning, ladies and gentlemen. I wish every one of you a very warm welcome in this short video of spinal cord tracts, pathways, and few of the pathologies that are frequently asked in the exams. I am Dr. Devesh Bhatt और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के. So here you can appreciate a cut section of a spinal cord, ठीक है. और especially मैंने ये section लिया हुआ है from the lateral horn. और ऐसा मैंने क्यों किया हुआ है? Because I mean not from the lateral horn, sorry, I'll repeat. This section is especially taken from the lumbar area, from the thoracolumbar area, because it has lateral horn in it. Do you understand? और ये जो lateral horn है, you can see, you can appreciate this protrusion outside जो lateral side पे है, they are the lateral horns. They are specifically in the thoracolumbar region. और इसका एक clinical implication क्या है कि when you are giving a spinal anesthesia, right? You are giving the spinal anesthesia in the lumbar region. So what this is going to do? This is going to block the sympathetic outflow. Sympathetic outflow will be blocked. And what will happen to the blood pressure if the sympathetic is blocked? The blood pressure will fall. So this is the clinical implication of this thing. Now let's talk more about the horns. Why they are called horns? Because they are present in the inner side in this gray matter. And what does gray matter have? They have nucleuses. Okay, and what is the function of nucleus? They act as a relay. They act as a relay of what? Of tracts. And where are the tracts present? The tracts are present in the white matter. This is the white matter that I'm highlighting. Or what is the white matter? It's basically nothing but axons. What are axons? Nothing but tracts. And where do they relay? They relay in the nucleus in the gray matter. And then from there they formed another order of neuron. Then they either they can take the information to the brain, or there might be some of the neurons that are traveling or they are bringing the information from the brain to the hands or feet, and they are called the motor neurons. All right, these were the gray matter horns. Okay, and so basically it's very simple here, right? If so, this is the anterior side. If there are horns here on the anterior side, we'll call them anterior horn. All right, if these are the lateral horns, and this is the posterior side, so that's why we'll call them posterior horns, also known as dorsal horns. As simple as that. All right, so let's also look at the functions, what they do. Like if we talk about ventral horn, ठीक है, हाथ अपने रहते हैं आगे. So in ventral horn, all the axons that are conducting the information from the brain to the hands, feet, basically all the motor activities, their axons relay in the ventral horn. ठीक है, they are going from up to the down, that is also known as efferent. All right, and dorsal horn, posterior horn, सारे sensations पीछे की साइड पे होते हैं. that means कि जो भी sensory tracts है, जो आपके जो sensation है, they are taking the sensations from the body towards the brain. They will relay, their axons will relay in the dorsal horn, dorsal root ganglion, and as it is sensory, it will go from down to up, and they will be also known as afferent. All right, in nature, from hand to spinal cord to brain. And you can also break down the name. If you'll just break down the name, it is like if the name starts from spinothalamic, that means स्पाइन से लेके थैलामस तक का सफ़र, या तो फिर अगर कॉर्टिको स्पाइनल, दैट मीन्स स्पाइन से, मतलब दैट मीन्स कॉर्टेक्स से स्पाइन तक का सफ़र. ऑब्वियसली स्पाइन से लेके थैलामस का सफ़र सेंसरी होना चाहिए क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, और कॉर्टेक्स से स्पाइनल तक का सफ़र ऑब्वियसली मोटर होना चाहिए. सो ऐसे नाम को ब्रेक करके भी यू कैन गेट एन आइडिया व्हाट वी आर डिस्कसिंग. ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि ये ग्रे मैटर जो था, तो जो एक रेक्सड करके भैया थे, रेक्सेड करके जो भैया थे, उन्होंने इनको 10 लेमिना में डिवाइड किया बेस्ड अपॉन द हिस्टोलॉजी. and this is not really very important for the exam except for few of the names that you have to remember. तो जो पहला है marginal, वो है सबसे पहला वाला, यहाँ पे होता है margin पे, ठीक है, और it is on the tip of the dorsal horn, ठीक है. फिर दूसरा ये एक important है substantia gelatinosa, और इस पे क्वेश्चन भी आया है, it's in the second lamina, ठीक है, ये वाला,
इट्स सब्सटेंशिया जेलिटिनोसा। और इसका काम क्या है पता है? वेन एवर यू गिव मसाज इट मेक्स यू इट मेक्स यू फील बेटर, राइट? इट मेक्स यू हैप्पी। तो वो जो मीडिएट करता है पेन एंड टेम्परेचर है ना, रिले करता है, वो ये करता है। और इवन इफ़ यू गिव मॉर्फिन द पेन गोज अवे एंड द पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी। सो इसमें भी ये काम कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। सो यू हैव टू रिमेंबर सब्सटेंशिया जेलिटिनोसा इन द सेकंड लेमिना। उसके बाद आता है न्यूक्लियस प्रोप्रियस, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क, चीफ सेंसरी न्यूक्लियस, रेंसोशेल्स, इंटरन्यूरॉन, ये सब क्या है? सेंसरी है। फिर बीच बीच में मोटर भी है, लेटरल मोटर, मीडियल मोटर। लेटरल साइड पे यहाँ पे ये लेटरल मोटर होगा, ये मीडियल साइड पे मीडियल मोटर होगा। एक और है ये मीडियो लेटरल न्यूक्लियस। सो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू रिमेंबर एवरीथिंग, बट जस्ट गो थ्रू द नेम्स, दे माइट बी आस्क्ड, ओके? So we talked about the gray matter now, and now we are going to talk about the white matter. That means we are going to talk about the axons. And what are axons? What does axon means? Axon is nothing but they are the tracts. Tracts of what? They are the bundles of axon having similar origin, course, termination and function. Okay, and here also according to the location, जो पीछे की साइड पे है वो posterior है, जो lateral की साइड पे है वो लेटरल है ऑब्वियसली, आगे की साइड पे जो है वो एंटीरियर वाइट कॉलम कहलाया जाएगा। पीछे की साइड पे है वो उसको डॉर्सल वाइट कॉलम कहेंगे, लेटरल साइड पे लेटरल वाइट कॉलम कहेंगे, लेंथवाइज, ठीक है? और सेंसरी वाले जो है वी कैन ऑल्सो डिवाइड देम दोज ट्रैक्ट्स, सेंसरी ट्रैक्ट्स, इनटू आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो असेंडिंग वाले ट्रैक्ट्स है एज आई टोल्ड दे आर सेंसरी इन नेचर, और जो डिसेंडिंग वाले ट्रैक्स है दे आर मोटर इन नेचर, है ना? तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी ट्रैक्ट्स की, और उनके फंक्शंस क्या है, उनका काम क्या है, क्या क्या सेंसेशंस वो कैरी करते हैं, वो सब, ठीक है? सो दीज आर द नेम्स। एक बार नेम्स याद कर लो ऑब्वियसली, और नाम को तोड़ना है। स्पाइनोथैलामिक मतलब स्पाइन से थैलामस तक का सफ़र को जोड़ना है, फ्रॉम द स्पाइन टू द थैलामस दे आर टेकिंग द सेंसेशंस, एंड दैट्स वाई दे आर एफरेंट, दैट्स वाई दे आर सेंसरी, ऑलराइट? एंड अब हम लोग सीधा उसके पाथवेज देख लेते हैं, एंड देन विल कम बैक टू दिस फ्लो चार्ट अगेन। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स। वी हैव डॉर्सल कॉलम जो पोस्टीरियर साइड पे था, एक एंटीरियर साइड पे डॉर्सल कॉलम, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। दिस आर द डॉर्सल कॉलम्स, ठीक है? यहाँ पे होंगे। अब एंटीरियर कॉलम्स है तो ऑब्वियसली यहाँ पे होंगे, ठीक है? अब लेटरल है तो लेटरल ऑब्वियसली लेटरली होंगे। फिर दूसरे भी है जो डॉर्सल, ऑल्सो नोन एज डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, वो डॉर्सल और वेंट्रल स्पाइनो सेरेबेलर। फिर से नाम को देखो, स्पाइन से सेरेबेलम तक का असर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट्स, उनका काम क्या है? वो जो है वो सबकॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशंस पे फोकस करते हैं। और ये सबकॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन भैया क्या होते हैं? वो सेंसेशंस है दैट इफ यू आर वॉकिंग यू आर अनकॉन्शियसली मूविंग योर हैंड्स, आपको पता नहीं रहता ना। तो मतलब ऐसी जितनी भी अनकॉन्शियस मूवमेंट्स होती है वाइल यू डू एनीथिंग, दोज आर नोन एज सबकॉन्शियस काइनेटिक सेंसेशंस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चों, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट्स की जिस पे हमेशा हम लोग कंफ्यूज होते हैं। दैट आर डॉर्सल कॉलम स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट, एक है एंटीरियर और एक है लेटरल स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट, ऑलराइट? तो बेस्ड ऑन द लोकेशन तो हमको पता चल गया कि भाई एक तो एंटीरियर पे है, एक लेटरल में है और एक डॉर्सल में है। तो अब ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, और ये भी देखते हैं कि वो लोग कौन से सेंसेशंस को लेके जा रहे हैं। सो the very first tract that we are going to discuss is the dorsal column, also known as dorsal column spinothalamic tract, and it is divided into fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus. As I told, they are on the dorsal side. तो ये जो dorsal side पे जो tract है वो fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus है। और पता है क्या है? जो ग्रेसिलस है, हम लोग क्या घिसते हैं हमेशा जब चलते हैं? हम लोग घिसते हैं पाँव, और दैट्स वाई जो ग्रेसिलस है वो लोअर लिम्ब से सेंसेशन ऊपर लेके जाता है, और जो क्यूनिएटस है वो अपर लिम्ब से सेंसेशन जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा ट्रैक कहाँ पे है। अब ऑब्वियसली अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और आप पहले कहीं पे चले जाते हो तो ऑब्वियसली आप अंदर वाली सीट ले लोगे सबसे पहले, बिकॉज यू आर कमिंग फर्स्ट। तो आप अंदर चले जाओगे, आप अंदर खिसक जाओगे। तो ग्रेसिलस का भी यही है, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी ट्रैक में आ चुका है और वो लोअर लिम्ब से सेंसेशन ऊपर लेके जा रहा है। दैट मीन्स इट विल स्टे ऑन द इनर साइड
ऑफ द डॉर्सल हॉर्न, और जो क्यूनिएटस है वो बाहर की साइड बाद में आता है बिकॉज इट इज टेकिंग द सेंसेशंस फ्रॉम द अपर लिम्ब, तो वो बाहर की साइड पे रहेगा ऑन द मीडियल साइड। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसके पाथवेज भी देख लेते हैं। ठीक है, कि अब पाथवे में ये डॉर्सल जो कॉलम है ऑब्वियसली वो पीछे की साइड पे है, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि आप जो पोस्टीरियर साइड पे मतलब जो डॉर्सल साइड पे जो ट्रैक्स है उनको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो ब्रेन में जाके भी क्रॉस करेंगे तो चलेगा। ठीक है, स्पाइनल लेवल पे क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सी दैट वी हैव आवर हैंड्स हियर, वी हैव आवर फीट्स हियर। तो मैंने क्या कहा था कि पाँव से क्या आ रहा है, पाँव घिसता है तो पाँव से ग्रेसिलस, हाथ से चाटा मारते हैं तो हाथ से क्यूनिएटस। ठीक है, वो पहले जाएंगे डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, बिकॉज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि डॉर्सल जो हॉर्न है वहाँ पे सेंसरी सप्लाई रिले करेंगे, और फिर वहाँ से वो लोग दे विल गो ऑन द सेम साइड। देख रहे हो बच्चों, दे आर गोइंग अपवर्ड्स ऑन द सेम साइड, इवन द क्यूनिएटस विल जॉइन टू द फ्रॉम द डॉर्सल रूट गैंग्लियन, इट विल कम हियर, इट विल गो अप ऑन द सेम साइड। फिर यहाँ पे वो लोग जाएंगे क्यूनिएट ट्यूबरकल में, और ये ग्रेसिलस वाला जाएगा ग्रेसिकल ट्यूबरकल में, सब अपने अपने घर में चले जाएंगे। फिर यहाँ पे मेड्यूला में ये दो क्रॉस करते हैं, जहाँ पे उस जगह का नाम है इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर। ठीक है, दे फॉर्म इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर, वहाँ पे वो लोग क्रॉस करते हैं। और इसीलिए जब ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, क्योंकि ये डॉर्सल कॉलम है, हम लोग स्पाइन की बात कर रहे हैं, तो अगर स्पाइन में कहीं पे ऐसे ब्रेक आ रहा है ना, ठीक है, स्पाइन में ब्रेक आ गया, देखिए एक बार फिर से समझाना है, स्पाइन में अगर एक साइड पे ब्रेक आता है ऐसे, तो ये सेम साइड के सेंसेशंस लॉस होंगे और दूसरे वाले बचे रहेंगे, क्योंकि ये क्रॉस ऊपर जाके हो रहा है। ठीक है, अब जब हम दूसरे ट्रैक्स देखेंगे तब वहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो लोग स्पाइनल लेवल पे क्रॉस कर रहे हैं, और अगर कहीं पे स्पाइन पे ब्रेक आ रहा है दैट मीन्स कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ सेंसेशंस होने वाला है आगे के पाथवेज में। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर क्रॉस हुआ है एंड दे आर फॉर्मिंग इंटरनल आर्क्यूरेट फाइबर्स इन द मेड्यूला, दे आर क्रॉसिंग, और ऊपर जाएंगे ऑब्वियसली कॉर्टेक्स में, क्योंकि नाम ही तो है स्पाइनो, क्या था नाम, स्पाइनो थैलामिक। तो कहाँ जाएंगे, थैलामस में, स्पाइन से थैलामस का सफ़र तय करना है। और फिर वहाँ से पोस्ट सेंट्रल गाइरस जो अपना सुना था ना, वहाँ पे वो सेंसरी के वो होता है, तो फिर वो पोस्ट सेंट्रल गाइरस में जाके दे एंड। सो ये पाथवे था इसका डॉर्सल कॉलम का। ठीक है, डॉर्सल कॉलम का। अब ये भी बात कर लेते हैं कि जो ये डॉर्सल कॉलम है कौन से सेंसेशंस को वो लेके जाता है ऊपर। तो पीछे की साइड पे कौन से सेंसेशंस होते हैं ये तो दिलीप सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन मतलब द सेंस ऑफ पोजीशन। अगर आपको आंख बंद करके भी बोल रहे हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ है तो आपको पता होगा कहाँ पे है। फिर आप क्या करोगे, आप उसको टेक्टाइल लोकलाइजेशन करोगे, उसको लोकलाइज करोगे आप। ठीक है, तो प्रोप्रियोसेप्शन करोगे, फिर उसको लोकलाइज करोगे, फिर यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, राइट। वो तो आंख बंद करके सब कर लेते हैं, तो यू विल डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दोज टू पॉइंट, देन यू विल आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसको हम बोलेंगे स्टीरियोग्नोसिस, आंख बंद है और हाथ में कुछ है, एंड देन यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यू विल डू फाइन टच ऑन इट, और उसके बाद यू विल डू ग्राफेस्थीसिया। उसकी ग्राफेस्थीसिया का मतलब है यू विल ट्राई टू फील द टेक्सचर ऑफ द स्किन। ठीक है, उसका टेक्सचर आप देखोगे। और ये सारे जो सेंसेशंस है ना बच्चों, दे आर कैरिड बाय आवर डॉर्सल कॉलम। और ऊपर के जो है वो क्यूनिएटस, हाथ से चाटा लगता है और पाँव घिसते हैं तो पाँव से ग्रेसिलस। ये हो गया अपना डॉर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं दो ट्रैक्स जो है आगे की साइड पे और दाहिनी साइड पे, आई मीन लेटरल साइड पे, और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और ये दोनों है भाई भाई, क्योंकि ये लोग करेंगे क्रॉस स्पाइनल लेवल पे ही क्रॉस कर जाएंगे और हम हमारी परेशानियां बढ़ाएंगे, इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल का कंफ्यूजन करवाएंगे। पर क्योंकि तुमने मेरी ये वीडियो देखी है, तुम मेरे बालक कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो हमेशा आगे रहता है या जो हमेशा लेटरल रहता है वो हमेशा क्रॉस कर जाता है। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विद एंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, बिकॉज हमें नाम को तोड़ना है, स्पाइन से थैलेमस तक का सफर को जोड़ना है। और एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्या करेंगे, देखो बच्चों, अब हम आपको सिखाते हैं कि अगर ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो पाँव से
सेंसेशंस लेके जा रहा है, एज यूजुअल इट विल रिले इन द डोर्सल रूट गैंग्लियन, बिकॉज हमने क्या बोला था ग्रे मैटर वाले टॉपिक में कि जो डोर्सल जो न्यूक्लियस है, जो डोर्सल हॉर्न है, वहाँ पे सारे सेंसरी फाइबर्स रिले करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी वो डोर्सल रूट गैंग्लियन पे रिले करेगा, वहाँ से डोर्सल हॉर्न में जाएगा, फिर यहाँ से ये बंदा क्रॉस कर जा रहा है ऑन द सेम स्पाइनल लेवल, वो क्रॉस कर जा रहा है, और फिर क्योंकि वो आगे की साइड पे ना, वो एंटीरियर साइड पे है, और फिर इट विल गो अपवर्ड्स। सेम ऐसा हो रहा है बच्चों इन लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। लेटरल है, स्पाइनो है, थैलामिक है, नाम को तोड़ना है, स्पाइन से थैलामस तक के सफ़र को जोड़ना है। दैट मीन्स इट इज टेकिंग सेंसरी sensations, relaying it in the dorsal root ganglion, going to the dorsal horn, crossing it on the spinal level itself, and then going upwards। तो मतलब अब यहाँ से एंटीरियर और लेटरल एक साथ हो जाते हैं क्रॉस करके, वो लोग ऊपर चले जाते हैं और उनको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, एंड देन दे विल अगेन गो टू द थैलामस एंड देन द कॉर्टेक्स। राइट, और अब इसमें क्या होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पाइनल पैथोलॉजीज। अगर कहीं से स्पाइन का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कट सेक्शन हो रहा है स्पाइन का, तो सेंसेशंस कहाँ से लॉस होने वाला है, यहाँ से लॉस होने वाले, सो द सेंसेशंस विल बी लॉस, दैट विल बी कॉन्ट्रालेटरल। तो अब ये भी बात करते हैं कि भाई कौन से सेंसेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की, उसके आगे की साइड पे बच्चों कौन से सेंसेशंस होते हैं। आगे की साइड पे हमारा क्रूड टच होता है। पहले तो आगे की साइड पे क्या होता है, सेक्शुअल सेंसेशंस होते हैं, ठीक है। फिर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ईच तो होता ही है, उसके बाद वहाँ पे क्रूड टच भी होता है, और फिर डिटेक्शन ऑफ प्रेशर भी होता है इन द एंटीरियर साइड पे, ठीक है। वंस अगेन विल हैव द क्रूड टच, विल हैव ईचिंग ओवर देयर, विल हैव सेक्सुअल सेंसेशंस ओवर देयर, एंड देन विल हैव डिटेक्शन ऑफ प्रेशर ऑन द एंटीरियर साइड, दैट इज एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब बात करते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मैं इतना प्यारा वीडियो बना रहा हूँ और तुम लोग इसको सुन नहीं रहे हो, अगर सुन के भी तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, या तो फिर सुन के भी तुमने मुझे चॉकलेट्स नहीं दी है, तो मुझे आएगा गुस्सा, मैं हो जाऊँगा नाराज़, और मैं तुमको लगाऊंगा चांटा जोर से। तो जैसे ही मेरा चांटा तुमको लगने वाला होगा, तो ऑब्वियसली गाल पे चांटा मारेंगे। तो बोथ द चीक्स आर लेटरल, और काम और हरकतें तुम्हारी चाटा खाने वाली है। सो पेन और टेम्परेचर भी तुमको लेटरल ही मिलेगा। दैट्स वाई पेन एंड टेम्परेचर आर कैरिड बाय लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। नाम को तोड़ना है, स्पाइन से थैलामिक तक का सफ़र को जोड़ना है। सो दे आर टेकिंग द पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस फ्रॉम द बॉडी टूवर्ड्स द ब्रेन, एंड दे आर टेकन बाय द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और ये लास्ट वाला जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक, उसका काम है सबकॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशंस को फील करवाना, महसूस करवाना। अब हमने इतना बात कर लिया है, किसके रिगार्डिंग बात किया है, सेंसरी ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग। तो फिर वह मोटर ट्रैक्ट्स ने क्या गलती की थी, उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज दे आर मोटर, मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो अपने CPU में प्रोसेस हुई है, दैट इज़ अवर ब्रेन, उसको हमें ले जाना है टूवर्ड्स आवर लिम्स और टूवर्ड्स आवर वॉलेंटरी मसल ऑर्गेन्स, ठीक है बच्चों, उसी को हम कहेंगे मोटर। और इसमें एक बहुत पता है प्यारा चीज़ है, एक तो है अपने, ठीक है, फिर से इसको नाम को तोड़ना है, नाम है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स। कॉर्टेक्स से स्पाइन तक का सफ़र को जोड़ना है, ठीक है। और यहाँ पे है एक तो पिरामिडल ट्रैक्ट्स और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स, और एक्स्ट्रा में से ये आर चला गया है, उसको डाल देते हैं, ठीक है। पिरामिडल ट्रैक्ट्स और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स, इसमें क्या होता है, चलो पाथवे ही सीधा देख लेते हैं। बिकॉज इट इज़ मोटर, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। और अगर आपको पता होगा, वो अगर आपने वो इमेज डायग्राम देखा होगा, तो मोटर एरिया ना आगे की साइड पे रहता है। मैं आपको हल्का सा ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर ये ब्रेन है, ये बीच में सेंट्रल सर्कस है, पीछे ये सेरेबेलम वगैरह है, तो ये जो आगे की साइड पे है ना, ये आगे की साइड पे वो आपका होता है मोटर एरिया नंबर 4। इसके भी आगे जो यहाँ पे है ना, वो प्री मोटर एरिया नंबर 6। और ये आगे की साइड पे इसको कहेंगे हम प्री सेंट्रल जाइरस, है ना, और उनका काम मोटर का है। पीछे की साइड पे जो रहते हैं ना पोस्ट सेंट्रली, इसका काम सेंसरी वाला है, ठीक है। दिस आर सेंसरी एंड दे आर कॉल्ड पोस्ट सेंट्रल जाइरस, क्योंकि है ना सेंट्रल सर्कस के पीछे है,
जो गाइरस है उसको कहेंगे हम पोस्ट सेंट्रल गाइरस। ये हो गया। तो चलो पाथवे देख लेते हैं। अब मोटर पाथवे से ना बहुत चालू है वे, पता है क्या है। एक तो मोटर एरिया में से निकले, ऑल्सो नोन एज पिरामिडल सेल्स ऑफ बैथ्स, विथ अलॉन्ग विथ प्री मोटर एरिया का भी काम है इसमें। फिर वो लोग ऐसे रेडिएशन से फॉर्म कर जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ये, उसको हम कहते हैं कोरोना रेडियाटा। उसके बाद जो इंटरनल कैप्सूल है ना, वहाँ पे उसकी पोस्टीरियर लिम्ब होती है, दे विल गो टू द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। वहाँ से फिर वो मिड ब्रेन में जाते हैं, फिर वहाँ से पॉन्स में जाते हैं, ऐसे करके। ऑलराइट, और फिर क्या होता है, एकदम चालूगिरी कर देते हैं वो लोग, नीचे आके ठीक है डिकसेट हो जाते हैं। और पूरे के पूरे ऐसा नहीं कि सब चले गए, 80% क्रॉस कर जाते हैं। 80% ये लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लोग मोटर एरिया में से निकले, कोरोना रेडियाटा आया, इंटरनल कैप्सूल आया, मिड ब्रेन आया, पॉन्स आया, ठीक है। फिर क्या करेंगे ये लोग, जो 80% है वो ऐसे करके क्रॉस हो जाएंगे, 80% क्रॉस हो जाएंगे, बट जो 20% रह जाते हैं ना, वो सीधे सीधे बेचारे एंटीरियरली चले जाएंगे। तो इसी के चक्कर में निकल वो एक ही जगह पे रहे, बट डिवाइड हो जा रहे हैं बिटवीन एंटीरियर एंड लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। कॉर्टेक्स जोड़ना है, ठीक है। एंड देन एज आई टोल्ड अर्लियर, वो ग्रे मैटर वाले सेक्शन में मैंने बोला था ना कि जो मोटर वाले सेंसेशंस के जो ट्रैक्ट्स है वो रिले करते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल्स में। तो देन यू कैन सी हियर दे विल रिले ऑन द एंटीरियर हॉर्न सेल्स and then they will supply to the muscle, alright। और अब देख लेते कि एंटीरियर और लेटरल हम बात कर रहे हैं तो उसमें फ़र्क क्या है। तो ये जो पिरामिडल ट्रैक्ट्स है ना, दे आर द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, ठीक है। वो क्यों लेटरल है, क्योंकि, और वो क्यों पिरामिडल है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो फाइन वॉलेंटियरली स्किल्ड मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। लिम्स के लिए यू नीड मोर मोटर एक्टिविटी, यू हैव 80% ऑफ लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दैट द लिम्स आर लेटरल, और इसीलिए लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, आपका जो पिरामिडल ट्रैक है वो काम करता है फाइन वॉलेंटरी स्किल्ड मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स। और जो 20% जो है वो बच जाते हैं, दे फॉर्म एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक अलॉन्ग विथ अदर ट्रैक्स, ठीक है। और इसका काम क्या है यार, एंटीरियर जो 20% जो बच रहा है उसका काम क्या है, हाँ कभी सोचा है। उसका काम भी मोटर सप्लाई है, तो मोटर का ट्रैक, बट टू द ट्रंक मसल्स, रिमेंबर फॉर इवन द ट्रंक मसल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द टोन, द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। तो ये काम करता है अपना एंटीरियर वाला भाई साहब, ठीक है। और अदर भी पिरामिडल ट्रैक्ट्स है, आई मीन अदर एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स है जिनके नाम आपको याद भी रखने पड़ेंगे। एक है रेटिकुलोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल और रूब्रोस्पाइनल। चलिए सबका तो नहीं, बट थोड़ा थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि ये जो वेस्टिब्यूलोस्पाइनल है ना, इट प्रोवाइड्स अल्फा मोटर न्यूरॉन ऑफ द एक्सटेंसर टू द लोअर लिम्ब, याद रखना, ठीक है। क्योंकि हम लोग अब एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है डिकॉर्टिकेट और डीसेरेब्रेट लीजन्स, और आई मीन डिकॉर्टिकेट और डीसेरेब्रेट पोस्चर, बिकॉज और उसमें ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो रूब्रोस्पाइनल है ना बच्चों, ये जो रूब्रोस्पाइनल है इसमें ध्यान दो, इट प्रोवाइड्स अल्फा मोटर न्यूरॉन ऑफ द फ्लेक्सर टू द अपर लिम्ब, सिर्फ अपर लिम्ब को, ठीक है बच्चों, नॉट टू द लोअर लिम्ब। अब हम बात करते हैं इसकी। अगेन बच्चों, जब भी आप नाम में कंफ्यूज हो जाते हो ना, बहुत सिमिलर लुकिंग नेम है, तो आपको क्या करना है, नाम को तोड़ना है। डीकॉर्टिकेट मतलब कॉर्टेक्स के नीचे का जो लीजन है, ठीक है, कॉर्टेक्स के नीचे का लीजन है, और ये जो है वो है डीसेरेब्रेट। अब ऑब्वियसली कॉर्टेक्स ऊपर है और सेरेब्रेट मतलब सेरेबेलम नीचे की साइड पे है। तो अगर डी कॉर्टिकेट लीजन है ना, वो ऊपर की साइड पे होगा, डी सेरेब्रेट लीजन है वो नीचे की साइड पे होगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। सो डी कॉर्टिकेट लीजन इज ऑन द अपर मिड ब्रेन। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेड्यूला है, ठीक है। तो अगर ये अपर मिड ब्रेन मतलब ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे लीजन आ रहा है। और दूसरा है डी सेरेब्रेट, वो नीचे की साइड पे होगा, तो वो अपर पॉन्टाइन ले लो आप यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जिसकी मैंने बातें करी ना, वो कहाँ से कहाँ जाता है बताऊँ, वो जाता है, इट ओरिजिनेट्स हियर एंड देन गोज डाउन। वो ऊपर की साइड पे नहीं होता है, ठीक है। तो अगर वो ऊपर की साइड पे नहीं है और अगर डीकॉर्टिकल लीजन हो रहा है, दैट मीन्स रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट इज पैड, वो बच जाता है। और मैंने क्या कहा था, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सर टू द अपर लिम्ब, दैट्स व्हाई इन डीकॉर्टिकेट लीजन माय गाइस,
ठीक है, सॉरी, इट्स माई स्लीप ऑफ टंग बिकॉज आई एम स्लीपी. एंड सो माई फ्रेंड्स, इन डिकॉर्टिकेट लीजन वी हैव एबनॉर्मल फ्लेक्शन विद एडक्शन बिकॉज द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट इज पैड. एंड उसका काम ये है दैट अल्फा मोटर न्यूरॉन ऑफ द फ्लेक्चर टू द अपर लिम्स. दैट्स वाई इन डिकॉर्टिकेट लीजन आप यहाँ पे यू कैन अप्रिशिएट दैट द आर्म्स आर फ्लेक्स्ड, ठीक है, विथ एडक्शन. और जो पाँव है वो तो हमेशा एक्सटेंडेड ही रहेंगे बिकॉज ऑफ द वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक विच प्रोवाइड्स अल्फा मोटर न्यूरॉन ऑफ द एक्सटेंसर टू द लोअर लिम्स. इसमें ये टॉपिक बहुत डीप है बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट. और अगर डिसेरेब्रेट लीजन है दैट मीन्स द लीजन इज हियर इन अपर पॉन्स, इन अपर पोंटाइन एरिया. और इसमें क्या होगा, द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट इज कट, वो चला जाएगा. तो अब उसको फ्लेक्शन नहीं होगा, वो फ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा. एक्सटेंशन विथ एडक्टेड आर्म्स. एंड यू कैन सी हियर माय फ्रेंड्स, माय डियर लवली फ्रेंड्स, इन डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग, इन डिसेरेब्रेट लीजन, इन डिसेरेब्रेट पोस्चर the hands are abnormally extended in decerebrate. I hope you understand this simple concept here. So let's look at some few of the pathologies here that are frequently asked in the exam. The first one is Brown-Sequard syndrome. Every one of you know here that Brown-Sequard is hemisection of the spinal cord. That means आपका spinal cord का आधा एरिया कट हो जा रहा है. अब आपको ये ख्याल रखना है यहाँ पे, आपको ये ख्याल यहाँ पे ये रखना है कि कौन सा इप्सिलेटरल लॉस हो रहा है और कौन सा कॉन्ट्रालेटरल लॉस हो रहा है. और हमने क्या बातें करी थी हमने कि जो ट्रैक्ट्स मेड्यूला में क्रॉस होते हैं, चाहे वो मोटर हो ले लो, आप एसेंडिंग ले लो, अगर वो मेड्यूला में वो क्रॉस कर रहे हैं तो जितना भी लॉस होने वाला है वो इप्सिलेटरल होगा. और अगर वो स्पाइनल लेवल पे क्रॉस कर रहे हैं तो जितना भी लॉस होने वाला है वो कॉन्ट्रालेटरल होने वाला है. तो बच्चों बताओ कौन से ऐसे ट्रैक्ट्स थे जो मेड्यूला में क्रॉस कर रहे थे. एक तो पहला जो अपना डॉर्सल कॉलम, ठीक है, क्योंकि वो पीछे की साइड पे था ना, सीधा सीधा ऊपर निकल लिया था वो बिना कुछ इधर उधर देखे, ठीक है. वो डॉर्सल, नाम को तोड़ो, स्पाइन से थैलामस तक के सफ़र को जोड़ो, स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट, ठीक है. दूसरा एक मोटर वाला हमने जो डिस्कस किया, जो लेटरल था, जो लेटरल चला गया था, अपना रास्ता भटक गया था, वो भी मेड्यूला पे क्रॉस किया था. कौन सा था वो, लेटरल. नाम को तोड़ो, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, लेटरल कॉर्टेक्स से स्पाइन तक का सफ़र को जोड़ना है, ठीक है. अब कौन से ऐसे ट्रैक्ट है जो स्पाइनल लेवल पे क्रॉस कर जाते हैं, मतलब तुरंत ही क्रॉस कर गए, क्योंकि जो बच्चे आगे रहते हैं ना वो तुरंत क्रॉस कर जाते हैं, है ना. तो कौन से सेंसेशंस थे वो, कौन सा ट्रैक्ट था वो, एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट. नाम को तोड़ना है, स्पाइन से थैलामस तक के सफ़र को जोड़ना है. इवन द एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वो भी क्रॉस नहीं कर रहा है ना. फिर से बोल रहा हूँ कि स्पाइनल लेवल पे जो क्रॉस करते हैं वो कॉन्ट्रालेटरल लॉस करते हैं, और वो है एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट. समझे बच्चों. तो आपको बस इसी पे से डिकोड करना है कि ब्राउन-सीक्वर्ड सिंड्रोम में डॉर्सल कॉलम में तो क्या क्या था, फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह वगैरह वगैरह. लेटरल में क्या था, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, वो मतलब वो इप्सिलेटरल मोटर जा रहा है, इप्सिलेटरल फाइन टच वगैरह जा रहा है जो स्पाइनल लेवल पे क्रॉस कर जा रहे हैं. एंटीरियर में क्या था, क्रूड टच, इचिंग, सेक्सुअल सेंसेशन वगैरह वगैरह. लेटरल में क्या था, पेन टेम्परेचर, है ना. तो ये सारे कॉन्ट्रालेटरल लॉस होने वाले हैं ब्राउन-सीक्वर्ड सिंड्रोम में. एक बार देख लो यहाँ पे, देयर विल बी कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर एंड क्रूड टच, एंड देयर विल बी इप्सिलेटरल लॉस ऑफ फाइन टच, वाइब्रेशन, स्टीरियोग्नोसिस एक्सेट्रा, एंड देयर ऑल्सो विल बी इप्सिलेटरल मोटर पैरालिसिस, ठीक है, बिकॉज इवन द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ऑल्सो क्रॉसेज एट द मेड्यूला. ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. चलो दूसरा थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं. देयर इज ऑल्सो अ कंडीशन नोन एज सिरिंगोमाइलिया. दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज फ्लूइड इन द सेंट्रल कैनाल, इंक्रीज प्रेशर ऑफ CSF इन द सेंट्रल कैनाल. तो क्या होगा, ये सेंट्रल कैनाल थोड़ा सा डायलेट होने लगेगा एंड इट विल सेंड प्रेशर टू द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स. और जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर है, जो सबसे कॉमनली और मोस्ट कॉमनली और सबसे पहले अफेक्टेड होता है, वो है लेटरल स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट. स्पाइन से थैलामस तक के सफ़र को जोड़ना है. इट्स अ सेंसरी ट्रैक्ट, इट इज़ फर्स्ट टू बी अफेक्टेड. और एंटीरियर वाला जो है वो बहुत आगे है,
इट्स वेरी एंटीरियर, तो वो बच जाता है, उसको कुछ नहीं होता है। एंड अदर सेंसेशंस आर नॉर्मल। और लेटरल का क्या काम था, मैंने क्या बताया था लेटरल क्या काम करता है? अगर मैं तुमको थप्पड़ मारूंगा चिक्स पे, चिक्स आर लेटरल, चिक्स आर लेटरल, और लेटरल करता है पेन। थप्पड़ पड़ेगा तो गर्म हो जाएगा पूरा टेम्परेचर और पेन, ठीक है। तो दैट्स वाई क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में दिया होगा दैट द पेशेंट विल प्रेजेंट विद बर्न्स ऑन द हैंड्स बिकॉज ऑफ द लॉस्ट पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस, एंड इट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सिफिलिस, दैट इज ट्रेपोनेमा पैलिडियम। और सिफिलिस से मुझे एक और चीज़ याद आती है, मुझे सिफिलिस से क्या याद आता है? टेबिस डॉर्सालिस। इसके तो नाम में ही डॉर्सालिस है, नाम में डॉर्सालिस है, मतलब ऑब्वियसली डॉर्सल कॉलम को अफेक्ट कर रहा होगा। डॉर्सल कॉलम में क्या क्या देखा था हमने? फेसिलस और ग्रेसिलस और क्यूनिएटस, पाँव घिसते हैं, ग्रेसिलस फ्रॉम द लोअर लिम्स, क्यूनिएटस हाथ से चाटा पड़ता है, क्यूनिएटस फ्रॉम द अपर लिम्ब, ठीक है। टेबिस डॉर्सालिस में क्या हो रहा है? डॉर्सल कॉलम अफेक्ट हो रहा है। डॉर्सल कॉलम का काम क्या था? फाइन टच, स्टीरियोग्नोसिस, प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह वगैरह, वो सारे सेंसेशन जो हमने बात करी थी। और इसका जो नाम है डॉर्सालिस, उसमें ही उसका निमोनिक है। पहले तो डॉर्सल कॉलम डीजनरेट हो रहा है, ऑर्थोपेडिक पेन होगा बंदे को, मतलब चारकोट जॉइंट, वो एकदम गंदे जॉइंट्स हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। द रिफ्लेक्सिस विल बी डिक्रीज, द रिफ्लेक्सिस विल बी डिक्रीज, ठीक है। देयर विल बी शूटिंग पेन, देयर विल बी एर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल्स। एर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल्स में क्या होता है बच्चों कि अगर आप एकोमोडेट करोगे ना, मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू ट्राई कि अपने आइज़ को एकदम क्लोज लेके आ जाओ, ठीक है, मतलब ऐसे लेके आ जाओ, देन दे विल कॉन्स्ट्रिक्ट बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन अ नियर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट है, अगर आप उस पर फोकस कर रहे हो ना तो आपकी प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। बट अर्गाइल रॉबिसन में क्या है, ये एकोमोडेशन प्रेजेंट रहता है, बट जो लाइट रिफ्लेक्स है ना, दैट मीन्स अगर आपके आंखों में लाइट पड़ रही है, दैट मीन्स आपकी प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। बट अर्गाइल रॉबिन्सन में ये नहीं होता है, बट एकोमोडेशन होता है, एकोमोडेट कर सकती है आंखें, ठीक है। फिर लोकोमोटर एटेक्सिया हो जाएगा, चलने में दिक्कत हो जाएगी। इम्पेड प्रोप्रियोसेप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोप्रियोसेप्शन नहीं होगा ना, डॉर्सल कॉलम अफेक्ट हो रहा है, एटेक्सिया नहीं हो पाए, मतलब आई मीन चल नहीं पाएगा ठीक से, ठीक है। और ये सब होता है सिफिलिस में। एंड आई थिंक दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर and this 30-minute video. I know it's a very long topic and I'm really sorry for extending it a little more, but I hope you all liked it. और ये एक पिक्चर है सारे ट्रैक्ट्स का इन दिस स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन का इमेज, एंड आई होप यू ऑल लव्ड इट, एंड प्लीज गिव मी योर रिव्यूज and please tell me how do you like it, whether do you liked it or not. And this is Dr. Devesh Bhatt signing off, and I hope you all have a good night ahead, ladies and gentlemen. See you.